Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video session, we'll discuss the daily topic-wise news analysis. So the coverage of the news will be from the Hindu as well as from the Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज न्यूज़ है उसको कवर करेंगे. न्यूज़ की जो टॉपिक है, जो थीम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल हो सके. तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं. And before I begin, I would like to tell you that tomorrow we are organizing a mega webinar. So the timing would be from 6 p.m. to 7 p.m. in the evening. And the speaker for this mega webinar is Gaurav Jain. He's an IUPS officer for 2018 batch. And the theme of the discussion would be how to make notes for UPSC and how to select the optional subject. Okay, so you'll get a clear guidance on as to what is the optional correct for you, right? For more details, you can refer to this WhatsApp number and you can check the description of this video where the detailed link has been provided. Now coming to the today's list of the topic that we'll be discussing. Today's 30th of May. The first topic is India-Australia Virtual Summit. Second is GDP growth slowdown. Third is Rojgar Setu scheme. And the fourth is Industrial Dispute Act. Okay, these are some of the important topics for today. And apart from it, we'll have some MCQs question with explanation for the yesterday questions. तो कल हमने जो question किए हैं उसके आज explanation भी मैं आपको बताऊंगा. So let's get started with the first topic, that is India-Australia Virtual Summit. So you can read an basically editorial on the particular same topic. So the title for that editorial is Anchorage Tied with Canberra, the Virtual Way, right? So यहाँ से आपको हिंदू को basically हिंदू के editorial में ये आपको चीजें मिल जाएगी. So we're looking into the other important aspects. Prime Minister of Australia and India will have a virtual summit on 4th of June. 4th June, see next month they are planning for a summit. This was already scheduled. जो Australian Prime Minister हैं, they were scheduled to travel to India in January, but because of the coronavirus pandemic which already started in December in the Wuhan city of China, तो उसके वजह से इसको डिले कर दी गई, आगे कैंसिल कर दी गई. और जो समिट होगी दैट इज टेकिंग प्लेस व्हेन बोथ साइड्स हैव जॉइंड हैंड इन सीकिंग द प्रूफ्स अगेंस्ट द कोविड-19 आउटब्रेक. तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑफ द नोशन कि जो इन्फेक्शन हुई है कोविड-19 की, जो ऑरिजिन है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली हुआ है, राइट? पूरे सारे कंट्रीज, सारे अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज़ इम्पैक्टेड. सो क्यों, कौन से लोग हैं, बेसिकली व्हाट इज द मेन प्लेस ऑफ ऑरिजिन, who are the people who should be set responsible for it. So Australia is taking a very strong action in collaboration with India. Already United States ने भी चाइना के खिलाफ बहुत सारी रिटेलिएशन मेजर्स लिए हैं. WHO के साथ उन्होंने अपना जो एंगेजमेंट है उसको कैंसिल किया है. सो दिस इज अगेन टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, और ये आने वाले टाइम में एक बेंचमार्क सेट करेगा किसी भी कंट्री के लिए अगर कहीं भी वायरस आउटब्रेक होती है. तो अब बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पैक्ट की, तो हमारे साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट पहले से भी है, और इस टाइम पे जो डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट है वो साइन होगी. दिस वुड बी अ वर्चुअल बायलैटरल समिट. सो बोथ कंट्रीज वुड बी टेकिंग प्लेस इन द वर्चुअल मोड. और जो साइन होगी उसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट, जिसको MLSTB कहते हैं, this would be between India and Australia. And this particular deal specifically will help India to pave way for the defense cooperation between the two countries. और जो हमारी large scale joint military facilities हैं, जो exercises है, उसको और बढ़ाया जाएगा, right? अगर recent terms में बात करें तो last April में ही Australia and India has witnessed a bilateral naval exercises जिसका नाम रखा गया था Aussie Index. राइट, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डायरेक्ट UPSC मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन पूछती है. Now coming to the cooperation on trade and Indo-Pacific, अगर बात करें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, they are planning to discuss in a ways in which both countries can strengthen their maritime security cooperation. जो हमारी maritime security है उसको कैसे boost किया जाए, एक लेवल ऊपर जाया जाए. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे मैप में देखोगे, they are also basically they are more concerned about their maritime security. Now building a greater ties under the strategic Indo-Pacific setup. It has also set up under the quadrilateral Quad and security dialogue. तो ये तीन पैमाने पे जो अपनी स्ट्रैटेजिक डायलॉग है इंडो पैसिफिक की, वो कहीं ना कहीं इन पे थीम्ड है, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट इन द रीसेंट इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट, जो चाइना की जिस तरह से साउथ चाइना सी में मस्कुलिन हुई है, बेसिकली दे आर मोर डोमिनेटिंग इन द साउथ चाइना सी. दैट इज अगेन अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कंट्री लाइक इंडिया एंड एनी कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम. सो दे आर मोर कंसर्न ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द चाइना इन द साउथ चाइना सी, राइट?
So this would be there in the agenda between this virtual meeting. And Australia is going to one of the worst phrases in the contemporary relation with China. तो चाइना बेसिकली इंडो चाइना की रिलेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो विटनेसिंग अ डाउनफॉल. बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें चल रही है. एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ द नोशन कि हु इज अकाउंटेबल फॉर कोरोना वायरस पेंडेमिक शुड बी सेट असाइड. एंड जो पूरी ज़रूरत है इस टाइम पे वो है कि भाई हमें वैक्सीन की तरफ भी आगे बढ़ने हैं, हमें वैक्सीन भी डेवलप करने हैं, बट एट द सेम टाइम द कंट्री रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज चाइना की अगर बात करें तो चाइना में वेट मार्केट है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. इट इज़ अ मार्केट वेयर ऑल द बेसिकली जितने भी नॉनवेज मार्केट, जितने भी नॉनवेज आइटम्स है वो यहाँ पे सेल होते हैं. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एपी सेंटर फॉर द कोरोना वायरस पेंडेमिक, राइट. तो वेट मार्केट के बारे में आप यूट्यूब पे या कोई वीडियोस देख सकते हैं या इमेजेस देख सकते हैं. सो यू विल गेट द क्लैरिटी किस तरह से कितनी बेसिकली डेंस मार्केट है वो, और चाइना के इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है. बट एट द सेम टाइम ऑल कंट्रीज आर इन द फेवर कि अगर ये वुहान से हुई है या चाइना से हुई है तो चाइना शुड बी सेट अकाउंटेबल फॉर दिस, राइट. ना बात करें स्ट्रेंथनिंग WHO अप्रूविंग द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, तो ऑस्ट्रेलिया विल सीक द सपोर्ट ऑफ इंडिया. ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया सपोर्ट करे एंड पुट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एज टू हाउ द WHO की जो अर्लियर स्टेजेस ऑफ पेंडेमिक है उसमें कहाँ चूक है, कहाँ भूल हुई है. ऑलरेडी आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है. एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना हैव गॉन अ पब्लिक स्पैट ओवर मार्च फॉर origin of the virus around the world, right. तो ऑलरेडी they had a tension कि who is responsible for it. एंड इंडिया शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ लार्ज कोऑर्डिनेशन. जो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो कोalition है उसको बढ़ाया जाए एंड टू ब्रिंग द बेटर रिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी विद इन द WHO. तो यहाँ अगर WHO में भी रिफॉर्म होती है तो इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट होगा जहाँ पे वी कैन टेक द लार्जर कोalition इन द WHO, राइट. Now coming to the second important topic, that is GDP growth slowdown. You must have heard in the news. तो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में भी ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स दैट इज देयर. सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है हमारा जो NSO है, उनके मुताबिक जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है बेसिकली 11 ईयर में अभी तक में सबसे लो हमारी GDP की ग्रोथ है, दैट इज क्लोज टू 4.2%. जो एंटिसिपेटेड थी जो ग्रोथ रेट समवेयर क्लोज टू 7% थी जब बात की गई थी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, when there was a set aside. तो यहाँ पे ये बात की गई थी कि अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है तो वी नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9 to 12%. तो अभी आप देख सकते हो प्रेजेंटली वे समवेयर इन द रियलिटी ऑफ 4 to 2%. दिस इज द कंप्लीट रियलिटी. ना अगर बात करें फाइनल क्वार्टर में, जिस तरह से जनवरी टू मार्च के पीरियड में, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो स्लम्प की 3.1% के आसपास. कुछ रिफ्लेक्शन आया कि फर्स्ट वीक में थोड़ी बहुत चीज़ें सुधर सकती है, बट अगेन लॉकडाउन के बाद वी हैव बीन विटनेसिंग अ कंप्लीट डाउनफॉल. जितने भी MSME सेक्टर्स हैं सारे में गिरावट देखी गई है. एवरी सेक्टर हैज़ शोन अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, फाइन. अगर एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें तो माइनिंग सेक्टर हैज़ पिक्ड अ स्ट्रीम फोर्थ क्वार्टर, जहाँ पे जो ग्रोइंग रेट है वो जो होनी चाहिए थी 5.9% के आसपास, नाउ इट इज़ 5.9 एंड 5.2, राइट. तो एग्रीकल्चर आउटपुट 5.9 है और जो माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ है दैट इज़ 5.2. नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड. अगर बात करें आउटपुट श्रिंकिंग के तो यहाँ पे 1.4% के आसपास है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज है ग्रो अप टू 10.1%. These datas are not very important for you, but it is very essential for you to know कि कौन कौन से सेक्टर में गिरावट है और किस में we are having a number increase, right? So these things are very important. आप एक बार अगर डेटा भी याद नहीं रखते हो तो that is not very relevant. मेंस में कई बार ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के लिए these are not important, but you have to understand the sequence increasing or decreasing, right? Now what was the target? अगर बात करें बजट एस्टिमेट की तो GDP की ग्रोथ रेट जो बेसिकली कोरोना वायरस से पहले दैट वाज अराउंड 8.5%. सो वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ GDP टारगेट ऑफ 7%, राइट. तो इतने तक हमने टच किया था, बट कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद नाउ वी हैव लैंडेड टू समवेयर क्लोज टू 4.5%. नाउ द NSO previous estimate has pushed the projection down to 5%. So this is what the target was set and how it has been achieved.
नाउ फॉल इन डिमांड की अगर बात करें तो 3 कंपोनेंट्स रखे गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखी गई है. तो फर्स्ट इज द कंजम्पशन पैटर्न. कंजम्पशन डिमांड एज लो बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी. ठीक है, अंटिल पीपल डू नॉट हैव मनी दे विल नॉट इन्वेस्ट. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है. एंड थर्ड, एक्सपोर्ट्स आर इन द बोथ नेगेटिव फिगर. तो एक्सपोर्ट भी नेगेटिव फिगर में ही बेसिकली दे आर रेटिंग ऑन द नेगेटिव वन. अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज टू 4.6% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट. जो पहले एस्टिमेशन की गई थी एनएसओ के तरफ से वो थी कि बेसिकली 3.8% के आसपास का नेगेटिव ग्रोथ देखा जा सकता है, फिजिकल डेफिसिट देखा जा सकता है, राइट नाउ. बट इट एक्चुअली हैज़ इंक्रीज टू 4.6%, right? Now this is the figure which you can find in Hindu also. So you can see the downfall. This is what the quarters 3.1, and the nominal growth has somewhere close to this axis, and the real is close to this. And this is in the quarter 13, quarter 16, and quarter 20, right? So the real GDP has slowed to 3.1%. Fourth quarter, my nominal GDP is at 7.5%. Now coming to the other important topic, that is Rozgar Setu scheme. This is again a very significant news. So Madhya Pradesh has announced a program that is called Rozgar Setu scheme to secure the employment for the skilled worker who have returned to their home, right? Any of the migrant worker who are working in any of the sector would be again getting the employment in the particular state itself. तो मध्य प्रदेश एक पहला स्टेट होगा जिसने इस तरह का प्लान वर्कआउट किया है और सेवरल अटेम्प्ट्स लिए गए हैं टू प्रोवाइड वर्क फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटर्न स्किल्ड वर्कर्स. फाइन. तो जो स्कीम है दैट एम्स टू मैन पावर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19. देखो ज़रूरी ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे तो आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, पर जहाँ सेमी स्किल्ड वर्कर ज़रूरत है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है बिकॉज दे आर द रियल सफरर ऑफ दिस पेंडेमिक. जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन है उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हुई है. नो व्हाट इसके साथ ही संविता स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. तो यहाँ पे सर्वे की जाएगी विलेज की मैपिंग के थ्रू दैट वुड इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल एरिया में कि कहाँ पे क्या किस तरह की ज़रूरतें हैं. एंड द स्कीम विल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड वैलिडेटेड सॉल्यूशंस. तो और क्या चीज़ें इसमें फ़ायदे होगा, उससे सबसे पहले ये है कि रेवेन्यू जो कलेक्शन है इन रूरल एरिया दैट विल इंक्रीज. एंड द प्रोग्राम इज करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका. ये जो हमारा स्वामित्व स्कीम है दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द कर्नाटका, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, राइट. तो ये सारी स्कीम ऑलरेडी इन स्टेट्स में भी चल रही है अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश. Now the other news is Industrial Dispute Act 1947. This is again very important. सो जो कोविड-19 की क्राइसिस है इसमें कुछ थ्रेशोल्ड बताए गए हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं उसमें किस तरह से जो वर्कर को इफेक्ट किया है. और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है बेसिकली एक मदरबोर्ड मानी जाती है इसको जितने भी लेबर्स लॉज हैं उनको लेकर के. एंड इट इनकरेजेस द शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट इन द लो स्किल एंड जीरो सिक्योरिटी. फाइन. तो अगर बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की तो जो पूरा पर्पस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का इज़ टू इंश्योर फेयर टर्म्स बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. जो वर्कमैन है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बने ताकि उनको सारा प्रॉपर जो बेनिफिट है फेयर रेम्यूनरेशन एंड फेयर बेनिफिशियरीज जो बेनिफिट्स होनी चाहिए वो उनको मुहैया हो. नाउ अगर बात करें पूरे ऑब्जेक्टिव की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की इज टू सिक्योर द इंडस्ट्रियल पीस हार्मनी बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी procedures for investing settlement and impute dissemination of negotiations, right. तो everything अगर कोई dispute arise होती है तो proper negotiation channel से उसके solution की तरफ आगे बढ़ा जाए. Now कुछ provisions है IDA के that is becoming decremental. The first is like de-incentivization of long term commitment. जैसे worker या entrepreneurial के बीच में जो vice versa जो commitment है वो कहीं ना कहीं de-incentivize करती है चीज़ों को. And it also kept informal एंड अनविलिंग ऑफ द इनह्यूमन कैपिटल, राइट. तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ह्यूमन कैपिटल में इनफॉर्मल सेक्टर में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द डिक्रीमेंटल बिकॉज होते क्या है कि बहुत सारे कंपनीज को बियर करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को. मैं आपको आगे बताऊँगा. सो क्या क्या 3 थ्रेशोल्ड है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हायरिंग अगर करते हैं फॉर मोर देन 99 वर्कर तो उनको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है कि उन्होंने इतने लोगों को हायर किया है और फायर करने से पहले भी उनको गवर्नमेंट को बताना होता है.
Now if they're hiring 20 people in a company, they have to provide provident fund commitments and bonus payment. तो ये इनको मुहैया कराने की जिम्मेवारी उस कंपनी की होती है, राइट. एंड इफ यू वांट टू डिनाई वर्क टू द सर्वेलेंस पे, तो किसी भी इंडिविजुअल को 240 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूसली काम पे नहीं रखना है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ द आईडीए. तो इस तरह के जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपका मेंस में हेल्प करेंगे, राइट. नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएसएमई की बात करें, अभी जिस तरह से कंट्रीब्यूशन देखी गई है एमएसएमई की जीडीपी में, वो इंक्रीज तो नहीं हुई है, बट अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 30%, राइट. जीडीपी में जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, एंड ओवर 94% ऑफ द एमएसएमईज आर माइक्रो सेक्टर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज जस्ट नॉट मेजरिंग अप. तो अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, और ये सेक्टर जो है अभी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. 2012 में एमएसएमई है प्रोक्योर्ड 37% ऑफ टू आवर जीडीपी. जैसे मैंने आपको बताया एवरेज 30% है, पर 2012 में दे कंट्रीब्यूटेड 37.54%. नाउ आपको मैं बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर डेली आंसर राइटिंग चैलेंज. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ से आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाने की लिंक मिल जाएगी. हर दिन हर सुबह यहाँ क्वेश्चन पोस्ट होते हैं और अपने आंसर आप हमें इवनिंग 6 PM तक भेज सकते हैं, राइट. सो दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अ गुड आंसर राइटिंग स्किल्स, राइट. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, उससे पहले जो कल के आंसर है उसको देखते हैं. तो कल मैंने आपसे कुछ दिल्ली सल्तनत, जो डेक्कन सल्तनत के जो मॉन्यूमेंट्स उनके बारे में पूछा था, उनके प्लेसेस के बारे में पूछा था. तो उसका फर्स्ट का आंसर है बी, दैट इज बहमी मॉन्यूमेंट इज इन गुलबर्गा, आदिल शास्त्री मॉन्यूमेंट इन बीजापुर, कुतुब शाही मॉन्यूमेंट्स इन हैदराबाद, एंड बदामी एंड बारिश शाही मॉन्यूमेंट इज इन बीदा, राइट. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आंसर. नाउ बात करें आंसर 2 की, तो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज मॉलिंग नेशनल पार्क इज देयर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, or it is spread over the upper Siang district on the past of the West Siang and East Siang district, or it is the second park to be created after the Namdapha National Park in 1972. So this is again very important, और नेशनल पार्क से रिलेटेड हर साल यूपीएससी एक सवाल जरूर पूछती है. Now coming to the today's question, so first question is from the environment. So consider the following statement: अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और नीतारी आइलैंड. सो इनमें से कौन कोरल आइलैंड इंडिया में है? फर्स्ट 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. योर पार्टिसिपेशन इन द क्विज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल इंडीड हेल्प यू इन द रियल एग्जामिनेशन. सो डू पार्टिसिपेट, राइट योर करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो. Now coming to the second question, that is from the current affair. Which states has announced the launch of Rozgar Setu scheme for secure employment of the skilled worker? First is Bihar, second is Arunachal Pradesh, third is Madhya Pradesh, fourth is Tamil Nadu. So you have to tell me answer in ABCD format. So whatever you feel is the correct answer, do let us know your answer in the comments down below. And these were the question for today's topic-wise analysis. And if you like this video, do not forget to give thumb ups and like this video. Subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services. For more informative videos, you can check our YouTube playlist section where you can get the ample number of videos which will help you in the preparation of the civil services, right? And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for listening. Stay home, stay blessed. Thank you.